भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आज सांध्यकालीन सत्र में हमारे मध्य है वेस्ट बंगाल से सुमेधा जी। बहुत बहुत स्वागत है उनका। सुमेधा जी, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम हियर, प्लीज कंटिन्यू। Good evening, everybody. I'm Dr. Shumedha Banerjee from West Bengal School Education Department, and I have done research on education, and moreover, I have done research at IICB, Jadavpur, Kolkata, a CSIR Institute on bioinformatics and wet lab techniques. And today's topic is bioinformatics and disability. Actually, I'd like to thank Indian Science Communicator Group, A.K. Tripathi sir, Geeta Sachdeva Kapoor ma'am, Suman Sharma ma'am for this opportunity and coming live and talking about bioinformatics and the disabilities. Now, we all are aware of disability, and WHO in 2001 has defined disability as an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions. It denotes the negative aspects of the interaction between an individual with health conditions. That individual constitutional factors can also be included, like environmental and personal factors. But this impairment becomes disability when it is developed to such an extent that individually cannot fully participate in the social and vocational pursuits. And how to deal with the problem? हम सबको तो पता ही है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है, चैलेंज्ड है, उनको क्या ही मिलता होगा, कितना भी जो अपॉर्चुनिटीज है या फिर इक्विटी है, कितना भी मिलता होगा. So it's better to uproot this problem from the root level. And for these, if we can determine the genetic root cause for the disabilities, and we can predetermine it through and confirm it through wet lab, it will be very helpful, and we can also and achieve a good sustainable society. तो इसके लिए जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो टेक्निक्स है या फिर वो लोग क्या करते हैं और जो जेनेटिक जो रीजंस भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनको जानना जरूरी है. सो जो भी डिसेबिलिटी है या फिर डिसेबिलिटी ना हो, कोई भी रोग हो, इसमें क्या होता है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है. These genetic mutation and variation result with the molecular features. जो उनका जीन है, उनका molecular changes हो जाता है, and likely to it may affect or may not the various proteins that cause the disabilities. For example, we are talking about, and this can be hearing, visual impairment, or intellectual impairment, or even be severe muscular or blood diseases, which can cause disabilities. Now, this modern approach of bioinformatics, ये क्या करते हैं कि it causes the molecular cause of many inherited genetic diseases, and it can also predict the candidate genes, the genetic variations, the causal SNPs. SNPs क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन में देखा जाता है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो रहा है और उसके लिए रोग भी हो रहे हैं, और वो बहुत सारे संख्या के लोगों में वो चेंजेस होते जा रहे हैं. तो ऐसे ये इजीली प्रेडिक्टेबल है. तो ये एसएनपी के लिए भी रोग होता है, तो उसको उस कॉजिंग एसएनपी का म्यूटेशन जो है उसको सर्च करना, फिर उसको वेब बेस्ड जो टूल है उसमें उसको वेरीफाई कर लेना. और इससे क्या होता है कि वी कैन आइडेंटिफाई द कैंडिडेट जीन्स, वी कैन इवन आइडेंटिफाई एंड inclusion of the new genes by this इन सिलिको अप्रोच. इन सिलिको अप्रोच को बायोइन्फॉर्मेटिक अप्रोच बोला जाता है, जो ड्राई लैब है, जो हमको वो केमिकल्स से नहीं करना पड़ रहा है, जो कंप्यूटेशन में बैठ के हम लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं. तो फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन interdisciplinary field that develops the method of software tools for the understanding of biological data. Now,
What are the subjects included over here? Is science, bioinformatics combines the computer science, the mathematical and engineering methods, and what it can do, it can predict the mutations, it can predict the molecular effect of genes causing the diseases. For example, we are talking about the disabilities, it can predict it. Bioinformatics efforts along with the genomic एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे और द वेट लैब, जो हम केमिकल्स के द्वारा जो हम लैबोरेटरी में करते हैं, उसके उसके सहाय के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन डेवलप द मेथड्स and the software tools for understanding the biological data and providing the opportunity to test the genes for the causation of genetic diseases for disability. तो ये बायोलॉजिकल डेटा क्या है? हम लोगों को तो पता ही है कि हम लोग का जेनोमिक जो डेटा है, वो हम जो जीन जो सीक्वेंस है, ह्यूमन जीन सीक्वेंस, उसका लाइब्रेरी हो चुका है, ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी है। अब जो cDNA है उसका भी लाइब्रेरी है, कोई कॉजल एजेंट है जो डिजीज करता है उसका भी लाइब्रेरी बन चुका है, तो उस लाइब्रेरी का डेटा हम लोग यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटेशनल मेथड से डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो ये सब करने का उद्देश्य क्या है? To define the objectives, firstly we can annotate the genetic variations data with the molecular features that are likely to affect the functioning or related to disabilities. We can secondly we can develop the bioinformatic methods for prediction of mutations that are likely to have molecular effect affecting the disability. Moreover, we can also encourage the discoveries. जो नया जो डिस्कवरी है उसको भी हम encourage कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, इसको बोला जा रहा है नोवेल कोरोना वायरस, लेकिन ये जो रोग ये तो पहले भी था, जैसे कि सार्स, मार्क्स, ये तो पहले भी था। उसी का क्या हो गया? थोड़ा जेनेटिक चेंजेस हो गया, नया जीन्स इंक्लूड हो गया और ये हो गया एकदम नोवेल, एकदम नया एक डिजीज आ गया। इस बार भी कोरोना आया है, पर क्या हो गया कि अब हमारे पास उसका जेनेटिक लाइब्रेरी है, तो हम कोई भी दवाई हो, कुछ भी हो, फार्माकोलॉजी हो, कुछ भी हो, हम लोग जल्दी कर सकते हैं और जल्दी हम लोग उसका सुधार भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सब डिस्कवरी के लिए भी ये सब जीनोमिक जो लाइब्रेरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थली, हम लोग अब बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, है ना? तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग ड्राई वेट लैब ना करके हम लोग इसका ड्राई लैब कर सकते हैं। तो जितना हम लोग इन सिलिको अप्रोच को अपनाएंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे? एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और चले जाएंगे। अब आपको हम चाहेंगे हम आपको दिखाना चाहेंगे ये देखिए, ये है, आपको दिख रहा है शायद, ये है एक्स क्रोमोसोम का सीक्वेंस, ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है औरत होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम के लिए और एक मर्द में एक्स और वाई क्रोमोसोम पेयर्ड रहते हैं। तो ये एक्स क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज एक्स क्रोमोसोम्स के लिए जो है लायबल है। अब हम आते हैं कुछ डिजीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले हम जो बात करेंगे वो है, हम लोग हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। हम आज कुछ ही डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं, 2-4 डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम हीमोफीलिया के बारे में बात करते हैं।
जो है हीमोफीलिया जो है ये इट इज अ एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर which is why it what are the problem it's causing? It is deficient in blood coagulating factor, and that is why it leads to excessive, prolonged or delayed bleeding. So the low levels of factor 8 or factor 9 is the root cause of this genetic disease. अगर हम इस मामले में शोध कर लेते हैं और हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को मतलब जो है कि मतलब कैसे करके किसी में ये जीन है या नहीं, ये हम शोध कर लेते तो हम लोग पहले से ये बोल सकते कि उनमें ये डिजीज होने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये तो आपको पता ही है। हम आपको फिर से मैं अपना एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है सिकल सेल एनीमिया का जो जेनेटिक जो म्यूटेशन है उसका तस्वीर है। यहाँ पे देखिए एक प्यूरिन बेस था, ये डीएनए सीक्वेंस है। तो डीएनए में दो पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बदल के टी हो गया, बस उसी से हो गया जो भी है। क्या हुआ था, इसमें ए रहता तो होता ग्लूटामिन प्रोटीन, लेकिन वो टी हो गया तो क्या हो गया, वैलिन जो है प्रोटीन तैयार हो गया। सो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड का चेंजेस हो गया, इसी के लिए क्या हो गया कि आपका ये सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ये हो जाता है अगर ये म्यूटेशन रहता है। तो फिर ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मतलब रिसेसिव क्या है कि अगर इसका 2 कॉपी जीन अगर बदल जाता है तो ही इसमें ये रोग होता है। और जिसके पास अगर 1 कॉपी जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम 11 में होता है। अगर किसी का मानिए एक क्रोमोसोम 11 में ए टी बन गया, जो एडेनिन जो प्यूरिन बेस होना चाहिए था उसमें टी थायमिन पिरिमिडिन बेस चेंजेस हो गया, म्यूटेशन हो गया, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा? तो वो आदमी तो क्लिनिकली क्या होगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है तो वो आदमी तो क्लिनिकली स्वस्थ है, तो किसका ये रोग होगा? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विथ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। कैसा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? सिकल सेल होता है, जो सिकल जिससे हम लोग फार्मिंग करते हैं वैसा देखने में हो जाता है ये हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, और इसके तो अंत तो मृत्यु से ही होता है। तो सीवियर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग पेन इज अ फीचर। A point mutation at A to T in the hemoglobin beta gene found on chromosome 11 is the cause root of this genetic disease. Now, one gene, if it is mutated, since it's recessive disease, क्या होता है कि वो आदमी तो क्लिनिकली हेल्दी होता है, लेकिन उसका आरबीसी क्या होता है? एबनॉर्मल दिखने में होता है, सिकल सेल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर होमोजाइगस होता है, 2 ही जीन क्रोमोसोम 11 में अगर बदल जाए तो क्या होता है? आदमी का एक्यूट एनीमिया हो जाता है और द पर्सन डाइज बिफोर प्यूबर्टी। डेथ इज द अल्टीमेट पेनल्टी। अब आते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। विजुअल जो जेनेटिक विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें तो पहला नाम आ सकता है एल्बिनिज्म का। एल्बिनिज्म ऑफन हैव विजन लॉस टू द एक्सटेंट दैट मेनी आर लीगली ब्लाइंड and actually they cannot see. Other more diseases there, Leber congenital amaurosis, that can cause total blindness or severe sight loss from birth or early childhood.
Now, recent this gene mapping or bioinformatic tools has helped a lot. And another genetic cause of low vision is or blindness is there, that is called Bardet-Biedl syndrome. और एक जिसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा is the second largest blinding disorder worldwide after cataract. About 1.52 million people in India are blind due to glaucoma. That is the 9% of the total blind population. It is a heterogeneous group of optic neuropathy with complex genetic basis. इसका बहुत complicated genetic basis. It's not easy to trace glaucoma genetically. With gradually, it reduces the vision without warning and often without any symptom. आपको पता ही नहीं चलेगा आपको ग्लॉकोमा हुआ है, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा. जब पता चलेगा तब तो रेटिनोपैथी, मतलब इट्स टोटली न्यूरोपैथी, मतलब आपका कोई सुधार नहीं हो सकता है. इट रिजल्ट्स टू ब्लाइंडनेस. तो फिर ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड रोग, इसका हम क्या करें? इसको हम कैसे करके थोड़ा, हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पहले से ही इसको जान जाए, इसको समझ जाए. हाँ, हो सकता है. आपको हम दिखाना चाहेंगे ग्लॉकोमा का जो जेनेटिक जो चेंजेस है उसको थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे. शायद आप देख पा रहे हो. देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये नॉइलिन जीन है. यहाँ पे क्या हो गया, जी पॉइंट म्यूटेशन ही हो रहा है. यहाँ पे जी मतलब जो है ग्वानिन जो है प्यूरिन बेस, वो ए हो गया. क्या हो गया, एडेनिन हो गया, प्यूरिन बेस. फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला तस्वीर देखिए, एडेनिन बेस जो था प्यूरिन बेस, वो टी हो गया, यानी थाइमिन पिरिमिडिन बेस हो गया डीएनए में. तो जीन तो बदल गया, सिंगल पॉइंट जो है उसका म्यूटेशन हो गया. तो अब ग्लॉकोमा जैसे महामारी का हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो बोल रहे कि 1.52 मिलियन पीपल इन इंडिया आर ब्लाइंड ड्यू टू ग्लॉकोमा. तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? प्यूटेटिव चेंज, मतलब हम लोग जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्यूटेटिव चेंज ही समझ सकते हैं. हम लोग इससे ज्यादा कुछ चेंजेस हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये एक इन सिलिको अप्रोच है. आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको वेट लैब में उसको कंफर्म कर लेना होगा कि यही वो जीन है या नहीं. लेकिन ये प्यूटेटिव स्टडी में बहुत हेल्पफुल है. तो नॉइलिन जीन एक वेरिएंट जीन बोला जा रहा है ये ग्लॉकोमा के लिए. तो इसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे कैसे पॉइंट म्यूटेशंस हो रहे हैं, और आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं. तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेथड्स है क्या, और ये कैसे काम करते हैं, इसका टूल्स क्या क्या है. सो bioinformatics have been used for in silico analysis of queries using statistical methods developed to predict mutation and are likely to have a molecular effect for genetic causes of disability. It can be done regarding genetic variation with the molecular features that are likely to affect the function related to disability. कैसा कैसा ये शोध कर सकता है? Identification of candidate genes that may have causal variants and identification of candidate causal SNPs. जो SNP है, जो कैजुअल causal है, जिससे SNP हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई ये कर सकता है. Identification and inclusion of new genes in the in silico approaches. तो ये कैसे करके करते हैं, इसका मेथड्स क्या है? डेटा माइनिंग मेथड्स है इनका, और
और क्या क्या हो सकता है, सीक्वेंस एनालिसिस, ब्लास्ट, माइक्रो एनालिसिस, जीन फाइंडिंग, एनालिसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन, पॉइजन प्रोसेस, कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जैसे पॉइजन प्रोसेस, मार्क ऑफ मॉडल्स, हिडन मार्क ऑफ मॉडल्स, ये सब मैथमेटिकल मॉडलिंग है। पूरा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे आपने देखा है कि कैसे करके जो कोरोना वायरस का जो आपका वैक्सीन तैयार हो रहा था, तो कैसे करके उसका जो एपिटोप है जो पैराटोप के साथ बाइंड कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है और उसी का शोध करके हम लोग वैक्सीन को निकाले हैं। ये सब आप लोग कर सकते हैं अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रुचि रखते हैं और इसको करते हैं, शोध करते हैं तो। और मोरओवर स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ मोटिव्स and methods based on the hypergeometric distribution provides an opportunity to test new hypothesis. How will you test the new hypothesis? ये तो आपका नया hypothesis हुआ, उसको आप confirm करना होगा by wet lab experiments. Now थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी। पहले तो हम बोलेंगे ब्लास्ट के बारे में, BLAST, ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल is an algorithm for comparing primary biological information such as कुछ भी हो सकता है information, DNA सीक्वेंस होता है जो मैंने दिखा चुकी आपको, या फिर अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, हो सकता है प्रोटीन का, जो भी आपको मिले। तो आपके पास एक लाइब्रेरी है और आपके पास एक नया कुछ है, तो आपको दोनों को मिलाना होगा, देखना होगा कि उनमें कितना, उसमें जो कॉमननेस है उसमें कितना अलाइनमेंट हो रहा है, कितना सिमिलैरिटी है। तो वो आप कैसे करोगे, आपको मैट्रिक्स का हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज होता है वो ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स यूज होता है। So it compares a query sequence with the library or database sequence and identify the library sequence that resemble the query sequence above the certain threshold. एक threshold दिया जाता है, उसके ऊपर अगर हो तो heuristic method finds a similar sequence by locating short matches between the two sequences. ब्लास्ट बिगिंस टू मेक लोकल अलाइनमेंट्स, लोकली छोटे छोटे अलाइनमेंट्स करता है पहले। सेट ऑफ कॉमन लेटर्स नोन एज वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है, लोकेट ऑल कॉमन 3 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर का एक कॉमन आपका सर्च आ गया, तो ये हो गया आपका वर्ड। अब इसी को सर्च करने लगेगा, ऐसा ऐसा 3 लेटर्स कॉमन कहाँ कहाँ आ रहा है, वो सीक्वेंस सेम ना हो, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन 3 लेटर्स कॉमन वर्ड जो है उसमें टुकड़ा टुकड़ा में उसको तोड़ा गया है और उसी को जोड़ के उसी को खोजते हैं। फिर आगे जाके पूरा अलाइनमेंट को 2 तरफ से उसको इंक्रीज किया जाता है, बड़ा अलाइनमेंट बनाया जाता है। टू से इन वर्ड्स it makes a set of common letters known as words, locates all common 3 letter words, the sequence of interest and the heat sequence or the sequence from the database. The sequence of the database is known as heat sequence. Now they build an alignment and the scoring metric for blast is blossom 62, which depends on the sequence of similarity. कितना similarity हो रहा है उतना उसका the threshold जो value है वो मिलेगा। The threshold score T determines whether a particular word will be included in that alignment or not. The alignment is extended in both the directions. Each extension impacts the score of the alignment by increasing or decreasing it. If the score is higher than the predetermined T, the alignment will be included in the result giving blast, and if the score is lower than the predetermined threshold of T, then it will be cease to extend. वो extend नहीं करेगा अगर threshold से कम होगा, ज्यादा होगा तो वो extend करेगा और बड़ा alignment आपको सर्च मिला के दिखाएगा। एक्चुअली जो गूगल सर्च है वो भी ऐसा ही काम करता है, आप कुछ लेटर देते हो, उसमें भी कुछ डेटाबेस है, उस डेटाबेस से वो लेटर का वर्ड जो है छोटा छोटा टुकड़ा सर्च करता है, करके आपको देता है रिजल्ट, ये आपका मिला। वैसे भी यहाँ पे हम लोग अमीनो एसिड सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस को सर्च करते हैं, करके हम लोग देखते हैं कि हमारा एक हिट सीक्वेंस है जो डेटाबेस में है और हमारा क्वेरी सीक्वेंस है, तो उसमें कितना मिला, हमको कुछ वेट लैब में मिला, मुझे लग रहा है कि नहीं ये जो मुझे मिला डीएनए सीक्वेंस यही उस रोग का जीन हो सकता है, इसी प्रोटीन के लिए वो हो रहा है, तो इसका हमें उपचार करना होगा। तो वो हमारा सर्च है, उसको हम लोग जो हमारा जो डेटाबेस है उसमें सर्च करके देखते हैं कि हाँ कितना सिमिलैरिटी हो रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि नया कुछ
जीन कोशिश कर रहा है क्या बनाने के लिए, या फिर पुराना ही है, थोड़ा कहाँ कहाँ चेंज है, तो फिर क्या करना होगा, तो इसका कैसे करके उपचार करना होगा, कैसे करके इसका रोग करना होगा, ये सब पता चल जाता है. सो that what I was telling, to make a sustainable development we have to go through bioinformatic techniques before we go to the wet lab. Now I am coming to the point of finding. So now I hope you could have understood about the findings. That is, it can predict the molecular cause of the genetic disease related to disability. The single nucleotide polymorphism जो हम बोल रहे थे, एक एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज बहुत लार्ज पॉपुलेशन में देखा जा रहा है. किसी का A to T हो गया, किसी का G to A, उसी पोजीशन में, उसी लोकस में, उसी जीन में हो रहा है. तो इसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो उसी से हमको पता चलता है कि वहीं पे रोग हो रहा है. तो SNP pattern showing complex form of diseases followed by association studies shed light on understanding on the challenging genetic cause of disability. Identification and inclusion of new genes to test these genes, causation of genetic disorder, and of course the computational analysis done by the data mining, and test new hypotheses by wet lab experiments in predicting the effects of protein amino acid substitutions. अगर हम इसका कंक्लूजन करना चाहे तो यही बोलेंगे, ये जो मेथड्स है ये एकदम फिट है मेंडेलियन जो भी हेरिडिटरी रूल्स फॉलो करने वाला जो भी डिजीज है सब पे फिट है. The tools are fit for Mendelian diseases that show the difference in gene expression pattern in affected tissues. ये कैसे करके करते हैं, ये predict the candidate genes mainly on geo terms. So geo term क्या है, geo annotation is the link between a gene, product, type and a molecular function, that is biological process or cellular component type. तो उसका जो जीन का जो प्रोडक्ट है, मतलब जीन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है, और उसका जो फंक्शन है उसमें जो लिंक है वही जियो एनोटेशन प्रोवाइड करता है. तो इसी के अनुसार ये बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक्स काम करते हैं. और पहले क्या हुआ, पहले जो सर्च टूल था वो लोग जैसे कुछ नाम लेते हैं, जैसे सस्पेक्ट, फोकस, G2D, ये सब these were based on descriptive keyword search to identify the candidate disease genes, and now they are finding the link between the gene prototype, the product type and the molecular function और product type में लिंक क्या है, इसी के अनुसार ये खोज होते हैं. तो यही हम कहना चाहेंगे कि हम आगे जाके कुछ और भी डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका क्या क्या इनसिलिको अप्रोचेस जो है उसके बारे में हम लोग जानना कोशिश करेंगे. हम फिर मौका मिले तो आएंगे और हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे. और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो मेथड्स है उसका जो अपडेटेड रिसर्च है उसको भी लाएंगे और हम लोग शोध करते रहेंगे, क्योंकि इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप का यही एक खोज है कि ये शोध किया जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए, और हम भी ये कोशिश करते रहेंगे. तो डॉक्टर सुमेधा बैनर्जी आपके फिर से आभारी है. इस मौके को हम बहुत अंतर से हम इसको सम्मान देते हुए आज का जो मैं कहना चाहती थी बायोइन्फॉर्मेटिक प्रोसेसेस ऑन द डिसेबिलिटी, उसका हम अंत करते हैं. थैंक यू. गीता मैम आप होंगी? गीता मैम, गीता सचदेवा कपूर मैम जी जरूर आएंगे और आपसे बोलेंगे. तो हम अभी यहीं पे अंत करते हैं. थैंक यू.